Good morning, everyone. Divi here from Always Live Yoga. Good morning, Sir ma'am. is joining in a second, so we are about to start the session in I think within 2-3 minutes. Dr. Bandre is joining us for today's session. So I just request everyone just wait for 1 or 2 minutes. In between, he's going to connect. Okay, ma'am. Sir has already joined us. Only we just see that his audio is connected or not. Yes, Sir, I am can you hear connected. me? Yes, I can. Okay, sir. Okay, Can sir. you hear me? Good morning. Good morning. Can you hear me? Yes, sir. Okay. I can hear you, sir. Okay. Everybody, can you listen to the sir? आपको sir सुनाई दे रहे हैं सबको? Okay. Thank Yes, you. ma'am. Yes, Thank ma'am. you. Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. Thank you. Sir, shall we start the session now? Yes, you can. Okay. You just As introduce we the have, subject. mentioned that today we are going to discuss about osteoarthritis or the knee pain. So if you have any query or questions after, sir will just say some significant things that is important to know about and how yoga is help in that. So that we are going to discuss, and later on we will ask the Q&A. We can have any query related to the yoga or any or medical illness that you are facing right now, that we are going to discuss it. Sir, आप start कर सकते हैं. Okay. Many people, about 20% people of the country suffering with knee pain, one or both the leg. घुटनों के दर्द ये बड़ा कॉमन है और रिप्लेसमेंट ऑफ नी is also getting common nowadays. But the problem is unsolved, and many people can't afford to go through the tedious surgery with lots of money. बहुत सारा खर्चा होता है और बाद में कोई श्योरिटी नहीं है कि आप चल पाएंगे ढंग से. तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सब जगह हो रहा है. बहुत लोगों को इससे परेशानी हो रही है. ये क्यों होता है? इस पे ज्यादा इसके इलाज बहुत होंगे. कोई तेल बताएगा, आर्थो ऑयल बताएगा, कोई कुछ बताएगा, मलम. ये सब बाहरी चीज है. दे आर एक्सटर्नली applicants. External applicants may not be working to cure the problem. I am talking about the cure of the problem, not the management of the problem. बहुत डॉक्टर उसको मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो that management is not sufficient. Still you are unable to walk and stand and climb up. Many you in different angles you feel the problem. So yeah, I have done the research on 1,000 patients of osteoarthritis, and they cured. They don't need to go for the surgical. But but there is a condition. What condition? When you have advanced arthritis, in which the cartilage is completely gone away,
what is the constitution of knee? One bone, thigh bone and the tibia bone, they both come together, and there is a design called uh, knee joint. So knee joint has three things: two bones, upper bone, lower bone, and in between there is a patella, and in both the bone there is a cushion called cartilage. In cushion there is a collagen fluid, and that fluid is sufficient to bear your weight. If you have too much weight, then it will degenerate faster. One point. Then the basic cause is degeneration in the knee joint is circulation in the knee joint while you sleep in on throughout the night. जब रात को सोते वक्त आप घुटने की पोजीशन क्या रखते हैं, उस पे निर्भर करता है वो घुटने की हेल्थ। आप कितने चले, कितनी साइकिल चलाए, कितने चढ़े, उतार किया, कुछ भी किया, all that is not countable because that is in daytime. That all activities are degenerating your problem, but that doesn't mean the recovery is not possible. Night only, because where you don't move, आप उसको मूवमेंट नहीं करते हैं, रात को सो के साइलेंट रखते पैर, उस टाइम उसमें रिकवरी होती। पर अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस, वी कीप bending our knees while we are in the sleeping position, both knees or one knee. If you sleep on the either side or you sleep on the belly, especially on belly, when somebody is sleeping, so he feels suffocation and burden on the belly, so they take the help of knee to bend, and they sleep like this, and that continues half the night. Then next changes will take place in that position, left knee. So alternately both the knees are bending. Some people don't sleep on belly, they sleep on side, but when they sleep on one side, one leg is bending, overlap on the other, or both knees are folding towards the stomach side, resulting no circulation in the knee joint, and the daytime degeneration is received by your knees are not recovered, because recovery takes place when circulation takes place. जब तक सर्कुलेशन घुटनों में नहीं होगा रात को, वो जो दिन की जो घिसाई हुई है, डॉक्टर बोलते हैं आपका घुटना घिस गया, तो किसने घिसा? आरी ने घिसा, किसी कारपेंटर ने घिसा, किसने घिसा? हम घिसते हैं रोज, और भगवान को ये मालूम था कि हम घिसेंगे ही, चलेंगे तो घिसेंगे, तो उन्होंने उसमें कोलेजन बना दिया। ब्लड के अंदर रिपेयरिंग मटेरियल होता है, उसका नाम है ग्लूकोसामिन। जैसा कैल्शियम होता है, आप केला खाते, सब्जियां खाते, कैल्शियम होता। सिमिलरली व्हेन यू ईट द फूड, one product is produced to repair the all cartilage of the joints. From hundreds of cartilage are there, and they can repair with that material. That material is also available in the market nowadays in the form of rejoint tablet. So the process is going on in the body with repairing with the help of glucosamine, and that glucosamine is retained in the blood. When blood passes through the knee joint, then it repairs, and the bones is maintained. The gap between two bones is maintained with the proper size of cartilage. I have avoided the patient who are completely finished their cartilage and no possibility to regenerate. So I ask them to go for replacement. But I have seen 30%, 50%, 60% till the cartilage, if it is damaged, it can recover. But 100% damages of cartilage will be impossible. Not possible. You have to replace the knee. So those patients who I selected thousands of patients. So I selected after seeing their X-ray, how it is damaged and how long time it will take place to repair. So that estimation given to 3 to 6 months to them. But it is depends on also, it is a secondary part of the repairing and exercising. Knee joint के घुटने की exercise करो, muscle strengthen करो, ये सब externally है। इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा 10-20%, 25%। फिजियोथेरापी कर लो, योगा कर लो,
कुछ फर्क पड़ेगा, क्योर नहीं होता। क्योर उसी कंडीशन में होगा कि आपके घुटने रात को सीधे रहना चाहिए। एक घुटने में तो उसको सीधा रखो, दोनों में तो दोनों सीधे। अब प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हेन यू स्लीप यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर माइंड. Mind is always follow the habits, and your habits are to hold the bend the knees, and that resulting the osteoarthritis, घुटनों का दर्द चालू हो जाता है। वो भी आप कहीं ऐसे सोते हैं तो कोहनी का भी दर्द चालू होता है। रोज ऐसे दबा के सोते हैं तो कोहनी में भी वही पोजीशन होती है जो हमारी घुटनों में। तो घुटने सीधे नहीं रह सकते, तो इसके लिए हमने एक तरकीब निकाली। क्योंकि पेशेंट ने कंप्लेंट किया कि हम कोशिश करते रात को पैर लंबे करने पर कब मुड़ जाते हैं हमको पता नहीं, वी कांट कंट्रोल। सो आई हैव रिकमेंडेड देम फॉर कार्टिल दी कंप्रेस्ड बैंडेज। एक पट्टा होता लंबा पिंक कलर का, 20 फुट का, 8-12 फुट का ऐसा लंबा, उसको काट उसको लेकर घुटने पर नीचे 4 इंच नीचे से ऊपर घुटने के 4 इंच तक लपेट लो। जस्ट रैप दी compress bandage on knee, not tightly but comfortably. On if you have complaint with both knees, you can wrap on both knees, or you can have the complaint on one knee to do accordingly. So if full night if you keep binding your knees, then your habit will be changed after 1 or 2 months, and repairing process will be faster, and you will be normal, and you will cured with osteoarthritis, और घुटनों के दर्द से आप बच सकते हैं। ये एक्सरसाइज वगैरह जो है वो थोड़ी हेल्प करती है, पर एक्सरसाइज रिकवरी नहीं करती। रिकवरी वो सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकती है, मसल स्ट्रेंथन कर सकती है, परंतु जो अंदर डिजनरेशन है वो रोज रात को हो रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता जब तक आपको ये नहीं पता लगे कि ये रोग क्यों होता है। तो मैंने आपको ये रोग होने का कारण और उसको क्योर करने का बताया। अब योगासन में बहुत कोई विशेष मूवमेंट्स नहीं होती है, नहीं कर सकते। घुटने की एक्सरसाइज में ऐसा घुटने को आगे पीछे 10 बार चलाओ, 10 बार चलाओ, फिर इसको गोल घुमाओ उल्टा सीधा 10-10 बार, फिर घुटने को ऐसा लंबा रख के उसकी वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मसल्स है उसको खींचो और ढीला छोड़ो, कॉन्ट्रासेप्टिव मसल्स को खींचो और ढीला छोड़ो। तो ये 2-4 प्रैक्टिस स्ट्रेंथन होने के लिए उत्कट आसन करो। उत्कट आसन एड़ियां उठा के घुटने के मोड़ते हैं अपन, ये वाला उत्कट आसन कर सकते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए 2-3 बार। साइकिलिंग जैसा लेट के साइकिल जैसा पैर चलाओ, तो ये एक्सरसाइज आपको हेल्प कर सकती है। बट हम नहीं समझ सकते कि ये आपको टोटल फायदा पहुंचाए। फायदा तब तक नहीं पहुंचाएगा जब तक आपकी कार्टिलेज पूरी रिपेयर नहीं हो जाए। ऑल द कार्टिलेज टोटल शुड बी रिपेयर्ड इन 3 to 6 मंथ टाइम, और उसके लिए जल्दी करने के लिए और कम टाइम रिड्यूस करना है, रिपेयरिंग और रिकवरी का टाइम रिड्यूस करना है, तो आपको एक सप्लीमेंट लेना पड़ेगी। वो है ग्लूकोसामिन की टैबलेट इन द फॉर्म ऑफ रीजॉइंट। बाजार में जो मिलती है इंडिया में उसका नाम, वैसे तो ग्लूकोसामिन इंडिपेंडेंट भी मिलती है टैबलेट अमेरिका यूरोप में, पर यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे उसका ब्रांड नाम वो चेंज कर दे। ग्लूकोसामिन जिसमें है वो टैबलेट ले सकते हैं आप विद कैल्शियम, वो आपको बाजार में रीजॉइंट के नाम से मिलती है। उसमें दोनों है, कैल्शियम भी है और ग्लूकोसामिन है, जो मेनली कार्टिलेज को रिपेयर करता है। तो मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, अब लिख लो, इससे प्रैक्टिस दोनों हो जाएगी। ग्लूकोसामिन मेन कंटेंट ग्लूकोसामिन। तो इस तरह से आप इस घुटने को सीधे रखो तो आपका घुटना ठीक रहेगा। और कुछ लोग तो एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, वॉक करते 5 किलोमीटर रोज, फिर भी घुटने दर्द हो गए उनको। ऐसा क्यों हुआ कि वो मोड़ के सोते रात एक या दोनों। ये मेरा फाइंडिंग है। यदि आप सीधे रखो और सो लंबे पैर करके, तो आपको नींद नहीं आएगी 3 रोज। You will not be able to sleep because you are habit to fold the knees and not to stretch them. और ठंड के दिनों में तो खास तौर से लोग घुटने मोड़ के सोते हैं, और जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जहाँ पे हिमाचल है और यहाँ ऊपर उत्तर भारत में, वहाँ सब लोगों को घुटने मोड़ के सोने की आदत होने से बहुत
घुटनों में प्रॉब्लम्स देखी गई है, बहुत से लोगों को इससे परेशानी देखी गई। तो आपको क्योर करना है अपने घुटने का दर्द तो आपको उसको क्रैप बैंडेज लपेट के सोना चाहिए और ये टैबलेट और योगा करना, ठीक है। और किसी को अब कुछ डॉक्टर ये बोल देते हैं कि वजन ज्यादा है। नो डाउट, वजन ज्यादा होने से थोड़ा रिकवरी में देर लगती। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम, अभी बोलिए। अभी प्रश्न मेरा तो हो गया, आपको शॉर्ट में बता दिया मैंने। और इसका वीडियो भी यूट्यूब पे आप देखना चाहेंगे तो इंदौर स्कूल ऑफ योगा के नाम से वीडियो है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का वीडियो देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा यानी मतलब कौन सी एक्सरसाइज करनी, व्हाट एक्सरसाइज यू हैव टू डू, यू कैन सी ओनली दैट वीडियो। बट नाउ वी कैन क्लियर योर डाउट्स। द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, so if you like to ask me question, switch on your speaker and talk. आप अपना स्पीकर चालू करके बात कर सकते हैं जी, एक एक करके। हाँ हाँ सर, एक्चुअली में है क्या, मुझे नी प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं कभी कदार फोल्ड करती हूँ नी, और जब मैं ओपन करना चाहती हूँ तो फिर लॉक टाइप का लग जाता है, फिर पेन करता है। तो क्या हो जाता है? लॉक टाइप का लग जाता है, फिर सीधा करने में। वो तो हाँ, लॉक होता है इसलिए कि उसकी गैप खत्म हो गई ना। दोनों घुटने के दोनों जो हड्डियों के बीच की गैप कम होने से वो एक दूसरे से भिड़ने लगते, उसी को लॉकिंग कहते हैं, क्योंकि कार्टिलेज खत्म हो रहा है वहां। तो आप कार्टिलेज भरने दो, वो ठीक हो जाएगा, वो लॉकिंग बंद हो जाएगा। तो कार्टिलेज कैसा भरेगा? गद्दी जो बीच में दो हड्डियों के बीच में गद्दी है वो पतली पड़ी, उसको भरने दो, वो लॉकिंग बंद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो कैसे भरेगा सर? टैबलेट लेना, घुटना सीधा रख के सोना, रात को क्रैप बैंडेज बांध के सोना 3 महीने, रोज खोलना और रात को बांध लेना, सुबह खोल लेना। जी सर, जी सर। और कोई बोल? सर, I want to ask. सुबी अग्रवाल। Yes, sir. सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये होता क्यों है, मतलब why अरे this happens? मैंने आपको बताया, केवल एक्सीडेंटल हो सकता है, किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ, टूट फूट हो गई, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पर जिनको ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनके घुटने में दर्द ऑल ऑफ सडन सूजन आ जाती, पानी जमा हो जाता है, दर्द करता है, चला नहीं जाता। तो इसी की कहानी बता रहा था। क्या नहीं, है कि जैसे हम सर घुटने कहा जाता है कि आर्थराइटिस होता है इसलिए बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी ईट, जैसे हम बादी करने वाले जैसे खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, गोभी खाते हैं, जिन खाने से गैस बहुत बनती है, बादी होती है, कहा जाता है उससे आर्थराइटिस होता है, उससे जॉइंट नी पेन्स जो या ऐसा जॉइंट बोलते हैं पेन्स ना, होते हैं। जो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो उनकी गलती है, उनको समझ नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। दूसरा क्या है कि वो जो ऐसा बोल रहे हैं उसका कारण एक है, वो एक जगह 50% सही भी है। वो जब उनके घुटनों में दर्द रहता है और इस तरह की चीजें खाते हैं तो दर्द बढ़ता है, क्योंकि बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। उस अब चावल खा लिया, आलू खा लिया, कुछ खा लिया, जिससे भी उन इमली की चटनी खा ली, तो उनका घुटने में सूजन दर्द बढ़ जाता है। इसलिए वो बोलते फूड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो गलत है। एक आदमी जिम में जाके वजन उठाता है, बोलता जिम में गया तब से कमर दर्द है, पर उसको पहले भी थी कमर दर्द, उसको मालूम नहीं था, जिम ने उसको रियलाइज कराया। तो आपके घुटने में दर्द है, ये रियलाइज नहीं हो रहा है, और आपने कोई चीज खा ली, इमली की चटनी खा ली, या कुछ जो आपको ये बोलते हैं लोग कि चावल मत खाओ, गोभी मत खाओ, इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी तक मैंने तो ये जो मिसकंसेप्शन है। हाँ, ये जरूर है कि जिसको ये प्रॉब्लम हो, उसको वो भोजन नहीं सहन होगा, उसका प्रॉब्लम बढ़ सकता है, तो वो अवॉइड करे थोड़े दिन, उसका ट्रीटमेंट कर ले, फिर सब खा सकता है। और जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, मेरी मदर भी एक्चुअली ज्वाइन किया हुआ है, उनके भी ऐसे ही रहा था। तो भी सुनो, जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल नहीं, आप गूगल सर्च कर ले। सर, गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है? जी सुनीता। नाम बोलो। हाँ, सुनीता शुक्ला। शुक्ला। शुक्ला जी जी बोली। जी सर, जब सर मैं ऐसे तो मेरा दर्द हल्का हल्का होता है, लेकिन जब मैं लगातार बैठी रहती किसी एक पोर्शन में तो मेरा पेन बढ़ जाता है, फिर उसको सीधे करने में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है ना,
जी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है मैडम, उसमें कोई जी जी चिंता वाली बात नहीं है। जब वो आप मोड़ के बैठ जाते हैं या स्टेडी रहते हैं एक जगह एक पोजीशन में, जी तो क्या होता है कि ये सर्कुलेशन पुअर हो जाता है। ठीक जी है, जी जी सर्कुलेशन पुअर होने से तो ये रोग हुआ है। रात को पूरी रात सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, इसलिए तो होता है। मैं अभी क्या गुड बताया? मॉर्निंग सर। सर मैं सर बात मैं एक मिनट, रात में शुक्ला जब शुक्ला एक शुक्ला पोर्शन में मैं मैडम, सो नहीं पाती, बहुत पोर्शन मुझे चेंज करने पड़ते हैं रात में। नहीं 2 जने बोलेंगे तो फिर जवाब नहीं दे पाऊंगा। शुक्ला मैडम को बोलने दीजिए। वही मैं बोल रही हूँ, आप एक एक करके सर से क्वेरी करें। अभी सुनीता मैम की क्वेरी चल रही है, लेट सर आंसर दैट क्वेरी कि शुक्ला, वो हाँ, जो वो चल रही हो गई होगी तो। सर मैं रात में जब सोती हूँ ना, मुझे बहुत करवट लेनी पड़ती है, मेरे मैडम बहुत शुक्ला, पेन होने आपको हो लगता गया? है, कभी इस आपका पोर्शन हो में कभी गया इस क्या? पोर्शन। सर आपने समझ लिया, आपका प्रश्न हो गया शुक्ला मैडम? सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ, मैं कह रही हूँ रात में जब सोती हूँ तो मुझे बहुत करवट लेनी पड़ती है सर, क्या लेनी पड़ती? बहुत बॉडी पेन बहुत होने लगता है, कभी इस करवट पे, कभी हाथ में, कभी पैर में। हम्म, तो मैं तो आपको कई बार करवट लेती हूँ तब सो पाती हूँ सर, कैल्शियम इससे विद नींद D3 बहुत तो डिस्टर्ब एक ले होती है लो। मुझे रात में। हाँ, तो कैल्शियम विद D3 लेना है वो 3 महीने रोज। जी कैल्शियम D3 कैल्शियम की गोली विथ D3 कैल्शियम वाली। तो मैं खा रही हूँ सर, हाँ, कैल्शियम और और जॉइंट सपोर्ट तो मैं खा रही हूँ लगातार। और योगा चालू कर दो, आप हो जाए। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर माय नेम इज सबनीत। बोलो। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब एज एन यूथ लाइक अस जो 25-30 साल के हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आगे जाके हमें ऐसी मतलब घुटने दर्द या ऐसे वाली चीजों से मतलब हमें परहेज हो सके, मतलब वी आर कॉशियस अबाउट इट। एक ही इसका जवाब है कि हम बचे कैसे रोगों से, यही ना? हाँ आने जी। वाले भविष्य में रोगों से कैसे बचे? तो योगा का प्रिंसिपल क्या है कि इम्प्रूव योर सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, राइट। हाँ। उसके लिए अपन टेम्पररीली क्या करते हैं, योगासन करते, प्राणायाम करते हैं और थोड़ा हल्का व्यायाम भी करते हैं। तो ये सर्कुलेशन तो बढ़ा देता है टेम्पररी, पर पूरा हमेशा सर्कुलेशन सब बॉडी में अच्छा रहे और दर्द पैदा नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक ही जवाब, और वो है रात को शवासन में सोना चाहिए। कोई अच्छा। भी जगह पे ब्लड रुकना नहीं चाहिए, ना कोहनी में, ना कंधे में, ना कुल्ले में, ना घुटने में, कहीं दर्द नहीं रहे। तो हमारे योग का प्रिंसिपल क्या है? स्लीप इन शवासन। शवासन सब मालूम है आप लोग को, हाँ है ना? जी। शवासन में पूरी रात यदि सोने की एक्सक्यूज मी कोशिश सर। करें तो कोई भी दर्द बचेगा नहीं। यदि आपका कैल्शियम विद D3 बराबर है ब्लड में, तो फिर कोई भी जोड़ में दर्द नहीं होएगा आपके, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है। सर आई हैव वन क्वेश्चन। सो मच। Adapt. So what is my short solution to your problem is you sleep in Shavasana if possible and try to learn and to maintain the pose for more time. शुरू में आप 15 मिनट से शुरू करो, फिर आधा घंटा शवासन, सोने के लिए गए बिस्तर में, फिर 1 घंटा, और कभी कभी नींद लग जाए तो 3 घंटे भी चले जाएंगे। बस उसके बाद आपके दर्द कम होते चले जाए। कोई भी दर्द, सिर दर्द हो, आंख में दर्द हो, कान में आवाज हो, दांत में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, छाती में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हार्ड बेड पे सीधा शवासन लगाओ, सारे दर्द 8 दिन के अंदर। आप यदि पूरा रात भर शवासन सोने के ट्रेनिंग ले लेते हैं, माइंड को ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी सारी दर्द चले जाए, कोई दर्द नहीं बचेगा, आप ढूंढोगे तो भी। हेलो ठीक है। सो मच। इसके ऊपर सर एक क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने एक बड़ा रिसर्च किया है। 27 problems of one body eliminated with one asana, and that is shavasana. बट वो शवासन आप आसन करने के बाद 2-1 मिनट के लिए करते हैं, उससे उससे राहत मिलती, हमें थकान वगैरह जो ब्रेथलेसनेस है या आसनों से तो आपको खींचातानी होगी, उसमें रिलीफ मिल सकता है, परंतु आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो मैंने उस पर खोज की, क्या यदि हम पूरी रात शवासन करें तो क्या होगा।
तो मैंने देखा 27 प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉडी, 27 कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते विदाउट मेडिसिन। नो मेडिसिन। ठीक है। हेलो आप सर, ले लो मैं तृप्ति बात कर माइग्रेन से लेकर फिर के माइग्रेन से लेकर एडी तक देख लो। एडी तक जितने भी दर्द है, सिर से एडी तक, एडी का भी दर्द वो भी खत्म हो जाए। पंजे का दर्द, पैर, पिंडली का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का, कुल्ले का, डिस्क का, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, चेस्ट पेन, स्टमक डाइजेशन प्रॉब्लम्स, सब कुछ एक साथ ठीक हो जाए। बोलो नेक्स्ट कौन? सर, मैं तृप्ति हूँ। आई एम तृप्ति। हाँ बोलो। सर, मेरा अभी मेनोपॉज पीरियड चल रहा है, तो हर महीने जब पीरियड स्टार्ट होता है तो मेरा घुटने में ज्यादा दर्द होता है, तो ये क्या रिलेटेड है? घुटने में ज्यादा दर्द होता है, पहले भी तो घुटने में रहता है जब पीरियड आता है, उसके पहले भी तो रहता है वहाँ। ओके। नहीं रहता? हाँ नहीं, इतना नहीं रहता है जब ड्यूरिंग पीरियड। देखो 10% भी घुटने में दर्द होगा मान लो, हाँ हाँ, तो पीरियड आता तो हार्मोन एविलेशन होता है बॉडी, उससे क्या होता है, हार्मोन एविलेशन से पहले 1-2 दिन पीरियड के सूजन आती है बॉडी, हाँ हाँ, पेट वाटर फूल रिटेंशन जाता है। होता है। हाँ, वाटर राइट। रिटेंशन होता है। अच्छा, तो उससे क्या होगा, सूजन बढ़ जाती है आपके घुटने के अंदर, इसलिए ओके। 10% का दर्द 30% हो जाता है। हाँ तो हाँ, आपको वो मेनोपॉज पे ब्लेम नहीं करना है, आपको क्या करना है, अच्छा घुटने को ठीक करना है। अच्छा। मेनोपॉज इज नेचुरल फिनोमिना, वो कोई राइट। अलग इंजेक्शन देके थोड़ी नहीं आपका मेनोपॉज क्रिएट किया। नहीं नहीं, राइट। नेचुरल ब्लीडिंग ज्यादा होने से तो होता नहीं ना? पेन ज्यादा इसलिए होता है कि उसमें चेंजेस आते हैं बॉडी में, वाइल यू अच्छा, आर इन प्रोसेस ऑफ मेनोपॉज, तो राइट। हार्मोन, हॉट फ्लैशेस आते हैं और हाँ, बहुत सारे, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, या कभी प्रेम भाव कम हो जाता है, कभी गुस्सा बहुत आ जाता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो हार्मोन इवोल्यूशन की वजह से होते हैं। ओके ठीक सर। है, वो तो नेचुरल गुड है, मॉर्निंग सर। टेक इट इजी। पर जो उसका थैंक यू। आफ्टर कहीं बॉडी में आता है तो उसको ठीक कर लो। अच्छा, तो मेरा शवासन इज। दीप्ति मैडम। हेलो सर। सर मैं तनु सदवानी थैंक बोल यू। रही हूँ। हेलो सर। हाँ आप बोलिए। सर मेरा भी वही प्रॉब्लम है, मेनोपॉजल। तो अभी मेरे घुटने पहले से ज्यादा दर्द हो रहे हैं और इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है। एस्ट्रोजन की कमी की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाली चीजों को मत खाओ आप, जैसे इमली की चटनी है, अमचूर है। इन्फ्लेमेशन क्यों बढ़ते इससे? ज्यादा नमकीन है, वो वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, खासतौर से किडनी, तब स्वेलिंग आ जाती है और दर्द बढ़ता है। तो जब आप मेनोपॉज में है तो ये चीजें कम खाओ, ना खाओ तो अच्छा है। चटनियाँ, अचार, पापड़, ये सब चीजें इन्फ्लेमेटरी फूड है, इन्फ्लेमेशन करती है। तो सिंपल फूड ले, आपका इन्फ्लेमेशन नहीं होएगा। और लॉन्ग रन में डॉक्टर ये जॉइंट को थोड़ा हेल्दी रखने के लिए क्या करें? जॉइंट को हेल्दी रखने के ठीक ठाक लिए रखने। एक्सरसाइज करो, शवासन में सो। और वो आप जो बोल रहे थे, वो जॉइंट में वो जो क्रेप लगा के वो बैंड वो आता है ना एक्सरसाइज का, वो जो पहनते नी कैप, वो भी पहन के सो सकते हैं? नहीं, वो क्या करती है कि वो टाइट हो जाती है तो वो बेचैन करती है। क्रैप बैंडेज ऐसा नहीं करेगा। वो और सर हॉट और कोल्ड कंप्रेस करना चाहिए क्या? केमिस्ट के दुकान में हाँ मिलता जी, है हॉट और कोल्ड कंप्रेस। वो सब हॉट ठीक और है, कोल्ड कर कंप्रेस। सकते हो, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु आप उससे कंसीडर करो कि ये रिलीफ देने वाली चीज है, सारी क्योर करने वाली नहीं है। सर मैं ये ऑइंटमेंट मेडिसिन लगा लेती लो, हूँ, तेल लगा लो। जॉइंट टेस्ट करके मेडिसिन है, वो ठीक है क्या? वो जॉइंट तो टेस्ट करके। टेम्पररी है, जब तक लोगे आपका दर्द कम रहेगा, रोग थोड़ी जाएगा। तो आप बोल रहे जो रीजॉइंट बोल रहे वो खाने के लिए, तो वो भी तो सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट, वो दवाई नहीं है, वो आपको सपोर्ट करेगी जल्दी रिकवरी। अच्छा
पेन किलर सर नहीं। तो ये रीजॉइन Good कौन से कंपनी का है सर? कौन से कंपनी का है ये बहुत रीजॉइन? सारी कंपनियां बनाती हैं। सर मेरा नाम प्रेरणा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, संदीपन मजूमदार बोल रहा हूँ मैं। दीप्ति मैडम से बात करो। हाँ, ओके। बोलिए दीप्ति मैडम। नमस्कार सर। हाँ बोल। सर मुझे है ना ऐसे मेरे को यहाँ पे पेन होता है आगे इधर घुटने के वो- आगे तरफ। बाकी मैं हाँ तो वो घुटने का ही हैं? आर्थराइटिस है वो घुटने में। कहाँ पे पेन होता है ऐसे? हाँ वो उसका असर आता है ना नीचे। अब देखो मैं बैठ दर्द जाती joint- हूँ पद्मासन में बैठ जाती हूँ पर जरूर नहीं कि जॉइंट पे ही हो, उससे आजू बाजू भी होता है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता अच्छा सर आपने एक बैंडेज के बारे में बताया वो क्या है? है। क्रैप बैंडेज बोलने से आपको मिलेगा इतना बड़ा लंबा पिंक किस कलर पे का 6 इंच चौड़ा, उसको लेके लपेट लो उसको रात को सोने के पहले। पे लगा सकती हूँ मैं वो रात को हैं? लगा के इस पे जहाँ मुझे पेन है वहां पे लगा के सो सकती हूँ मैं रात को? हाँ उसको बांध के सो, रैप करके सो घुटने पे। ठीक। बाकी मुझे हम और वो मतलब बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये आगे में पेन होता है इधर में यहाँ पे। अब वो एक्सरसाइज करो घुटने की और वो रात को बांध के सो, जरूरत पड़ी तो रीजॉइंट टैबलेट ले। सर मैंने ग्लूकोजामिन भी बहुत खाई है। अरे बहुत मैं खा लेती लेने से हूँ। कुछ नहीं होता, जब तक आपके ब्लड में सर्कुलेट नहीं होगा वो घुटने मोड़ के सोओगे तो कैसे रिपेयर होगा। ठीक है घुटने मोड़ के नहीं सोना है। वो बेसिक रीजन तो वही है ना। कैसी होती है क्रेप बैंडेज? प्रेरणा बेसिक रीजन तो वही है। ठीक और है सर, हम थैंक वो यू। दवाई मेरी खा एक ले कुछ। क्वेरी है। गुड 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 मॉर्निंग सर। मेरी प्रेरणा बोल रही है, हाँ बोलिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी मम्मा 60 इयर्स की हैं, उनको डायबिटीज है, तो नॉर्मली वो चलती है, वॉक करती है, वॉक पे तो डेली जाती है, उठने बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो बोलती है कभी कभी ऐसा लगता है चलते चलते घुटना पलट जाएगा, मतलब आगे से पीछे आएगा, तो ये क्या प्रॉब्लम है? वो इस प्रॉब्लम की शुरुआत है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में शुरू में ऐसा ही होता है रियलाइजेशन। ओके। उसके बाद फिर दर्द चालू होता, सूजन आती, पानी जमा हो जाता, फिर वो पूरा आर्थराइटिस में फॉर्म होता है। तो अभी उनको ये आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए जो मैंने बताया। एक्सरसाइज, रात को सीधे रख के सोना, रैप बैंडेज बांध लेना और एक रीजॉइंट टैबलेट 1 महीना रोज लेना। सर थैंक यू। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हेमा है। आपने लाइक शवासन में सोने के लिए कहा है, क्या हम बेड पे सो सकते हैं या वुडन प्लैंक पे सो सकते हैं? वुडन प्लैंक पे। आप हार्ड बेड पे सो तो चलेगा, हार्ड बेड पे सो। ओके ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, संदीपन मजूमदार बोल रहा हूँ मैं। सर एक्चुअली मेरा क्या है, हील में प्रॉब्लम होता है, हील में चलने के टाइम पे पेन होता है हील में, और राइट हील में ज्यादा होता है। हाँ राइट हील हिल में में सर, राइट हिल में ज्यादा होता है, तो ये क्या? उसका कारण क्या है कि आप राइट करवट में ज्यादा सोते हो, इसलिए एंड में हील में नर्व ब्लड पहुंचाती है, वापस नहीं आता। आपका जो बेड है वो सॉफ्ट है और आप राइट साइड में ज्यादा सोते हो और लेफ्ट में कम सोते हो, तो इसलिए सर्कुलेशन एंड में, हील में एंड होता है नर्व का। नर्व स्टार्ट होती है कमर से, कुल्ले से, तो कुल्ला जब आपका सैगी बेड में घुस जाएगा तो एंड में सर्कुलेशन नहीं होता। तो आप हार्ड बेड यूज करो और सीधे शवासन में सो, वो करवट में मत सो, तो वो ठीक हो जाए विदाउट एनी एक्सरसाइज। सर आपका कैमरा ऑफ हो गया है। ओके ओके सर, थैंक यू ठीक सर, है। थैंक यू। और कोई प्रश्न होगा? Any other questions? Yes, my name. Yes, Anil sir. हाँ Please. सर जैसे हम सीधे सोते हैं तो फिर कमर में कभी कभी दर्द होता है, तो उसके लिए क्या करें? कमर के दर्द के लिए हार्ड बेड यूज करो और योगासन शुरू करो, तो उससे सर्कुलेशन कमर में ठीक हो जाएगा। लगातार एक जगह बैठना नहीं थी 1 घंटे से ऊपर, उठ के बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर घूमो फिरो, फिर अपना काम में बैठ जाओ, तो ऐसा कर सकते हैं। लगातार एक जगह बैठे रहने से प्रॉब्लम होती है। जी जी सर, यूजुअली जब सोते हैं रात में तो लगातार मतलब उस पोजीशन में नहीं सो सकते, तब दिक्कत होती है, तब करवट लेनी पड़ती है या फिर थोड़ा सा पोजीशन चेंज करना? तो
ले सकते हैं ना थोड़ा बहुत, पर लगातार एक ही करोड़ में पूरी रात सोने की हैबिट को चेक करना जरूरी है। ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। हेलो हेलो हाँ बोली। सर मैं स्वाति बात कर रही हूँ। सर मेरा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा डिफरेंट है। व्हेन आई वाज 17 तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरा राइट नी का ACL रप्चर हुआ था, लिगामेंट। तो सर उस समय तो सर्जरी हमें मतलब मना कर दिया था डॉक्टर ने, तो उन्होंने बोला जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये नॉर्मल हो जाएगा। तो सर मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं। अभी मैं अर्ली 30s में हूँ। तो मैंने लास्ट मंथ अपना MRI एंड एक्सरे करवाया, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टार्टिंग बोला है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप सर्जरी नहीं करवाओगे तो आपका मतलब 45 साल की उम्र में या फिर 50 साल की उम्र में बिल्कुल घुटना खराब हो जाएगा। तो वैसे सर मुझे कोई ऐसा पेन नहीं है, लेकिन मैं अपने राइट नी पे प्रेशर नहीं डाल सकती ड्यूरिंग योगा, क्योंकि वो कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं और कुछ पॉपिंग साउंड आती है उसमें से। तो ये हाँ, क्या वो जो प्रॉब्लम साउंड आ रही है वो साउंड का इंडिकेशन है कि ये ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है। ट्रॉमेटिक अच्छा आर्थराइटिस होती है जो ट्रॉमा, सर। जो एक्सीडेंट होने के बाद जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में, उसको ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। ओके तो सर। आपकी चोट लगी थी ये तो आपने बता दिया, उसलिए आपको घुटने की एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगी, तो उससे आपका फिटनेस बना रहेगा। और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म पे आपने एक्सरसाइज छोड़ दी, ये तो हमेशा जी करनी सर। पड़ेगी, और छोड़ दी तो आपको नी रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके सर। तो ठीक सर है, मतलब योगा में कंटिन्यू रखूं और मतलब स्ट्रेंथन करूं अपने नी को, राइट नी हाँ, को। एक्सरसाइज करो इन ऑल डायरेक्शन, नी जॉइंट अच्छी तरह मूवमेंट होना चाहिए विदाउट पेन, दैट इज ऑल ओके एक्सरसाइज। ओके ठीक है, सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो हाँ जी, मेरा नाम अनु है सर। ठीक है सर, मैं अगर कंटिन्यू मैं जो भी किचन में काम करती हूँ, तो मैं ज्यादातर खड़े होकर काम करती हूँ किचन में। ठीक है, तो 2-3 घंटा अगर एक बार किचन में गई तो 2-3 घंटा से कम नहीं लगता है। तो वो सर मतलब कि जब काम करके रिलीफ होती हूँ, जब बैठती हूँ तो जैसे लगता है नी में ये वो सबसे ये एड़ी में इतना दर्द होने लगता है कि जिसका कोई मतलब ये नहीं। दोनों एडी में होता है कि एक एडी में? नहीं, दोनों में होता है। सब जैसे लगता दोनों है में, कितना ज्यादा वजन आ गया है। जी दोनों में होता है। जी वो स्टेनोसिस है, आपको आपके कमर के अंदर जो वर्टेब्राज है वो खड़े रहने से इनक्लोज हो रहे हैं, उसकी वजह से एडी तक दर्द नहीं, सर्कुलेशन नहीं हो रहा। बस आधा घंटा आप और ज्यादा मकरासन किए, पेट के बल और लेट के ज्यादा ऐसे हाथ रख के मकरासन करो, पैर चौड़े करो, लंबे करो और चौड़े कर दो, इनर सोल को जमीन पे रखो, और ऐसे थोड़े 15 मिनट तक ये मकरासन करो आप, तो उससे एडी का दर्द चला जाएगा। और भुजंगासन, ज्यादातर अर्धशलभासन और सेतु बंद, ये 3 आसनों का अभ्यास रोज करो। ज्यादातर ये चीज रात में ज्यादा होता है, मतलब जब वो तो सोने के थोड़ी, टाइम में वो ये तो चीज ज्यादा फील जब स्ट्रेन होगा ना, आप ज्यादा देर खड़े रहो तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो ज्यादा बढ़ेगा। और ये भी सर, और ये मतलब कि सो के उठते हैं तो कमर जैसे लगता है कितना भारी हो गया है, कितना पेन हो रहा है। उसके अंदर मतलब सर्कुलेशन कम हो जाता है वो वर्टेब्राज में, लोअर बैक के। क्यों होता है? या तो आपका बेड हार्ड नहीं है, सॉफ्ट बेड पे सोते हो आप, दूसरा ज्यादातर से करवट में सोते हो आप, सीधे नहीं सोते, तो जी सर्कुलेशन करवट एडियो में। हाँ, फिर बैठते जब है आप फुर्सत में, तब सोफे में घुस जाते हैं, फिर तो घंटा 2 नहीं घंटे बैठ। उठते ही नहीं वहां से। तो ऐसा नहीं करना, हर घंटे में उठ जाना, सोफे का यूज कम करो, कुर्सी, हार्ड सरफेस वाली कुर्सी का यूज करो आप। ठीक है अन्नू? जी ओके, थैंक यू। यस I think, sir, now we can close the session. यस, है ना? Thank you नाइस। everyone for joining us today, and thank you, sir. Have a nice day, everyone. Happy Sunday. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank थैंक you. यू Ma'am. Thank you, sir. You can थैंक यू put Thank you your so much. question on alwaysliveyoga.com. If you have some problem, you can Yes. write the question on the alwaysliveyoga.com. You'll get the answer. Okay. Yes. Thank you, sir.
Thank you. Thank you, sir. Thank you. Any problem you can discuss on by writing on alwaysliveyoga.com. I'll answer. Yeah. Okay, sir. Thank you.